بڑے بوڑھوں سے جنگ آزادی، انگریزوں کے بقول غدر کے واقعات اکثر سنے اور خواجہ حسن نظامی کے لکھے ہوئے افسانے بھی پڑھے اور سوچتے کہ ایسی تباہی دلی پر کبھی آئی ہے نہ آئے گی۔ لیکن ستمبر 1947 کی غارت گری کے سامنے 1857 کی بربادی ہیچ ہو گئی۔ اتنی بڑی تباہی تو دنیا کی تاریخ میں کبھی آئی ہی نہیں۔ لکھوں آدمی مارے گئے، اتنی خون ریزی ہوئی کہ یہاں کی مٹی سرخ ہو گئی، اور کوئی خاندان ایسا نہ رہا کہ جسے مالی یا جانی نقصان نہ پہنچا ہو۔ اگست کے شروع ہی سے دلی میں بری خبریں آنے لگی تھیں۔ پھر پنجاب اور سرحد کے شرنارتھی بھی آنے شروع ہو گئے، اور ان کے لیے شہر کے اندر اور باہر کئی کیمپ کھل گئے۔ انہوں نے طرح طرح کی کہانیاں سنا کر دلی کی فضا مکدر کرنا شروع کی۔ 12 اگست سے لاہور کی حالت بگڑی، اور ایسی بگڑی کہ 3 دن میں وہاں سکھ اور ہندو نام کو نہیں رہا۔ نہ امرتسر مسلمانوں سے خالی کرایا جاتا اور نہ لاہور پر آفت آتی۔ لاہور کے بعد سارے مشرقی پنجاب میں قتل و غارت گری وبا کی طرح پھیل گئی۔ اس کا اثر مغربی پنجاب پر پڑنا ضرور تھا، وہاں بھی کشت و خون شروع ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں دلی میں شرنارتھیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ دم گھٹنے لگا، خنجر زنی کے واقعات شروع ہو گئے اور ریل گاڑیوں میں خون ہی خون دکھائی دینے لگا۔ دلی والے مطمئن تھے کہ چاہے سارے ہندوستان میں لوٹ مار ہو، دلی میں امن رہے گا، کیونکہ یہ دارالحکومت ہے اور یہاں دنیا بھر کے سفیر رہتے ہیں۔ ہندوستانی حکومت یہاں ہر قیمت پر امن برقرار رکھے گی۔ 15 اگست کو بڑے زور و شور سے جشن آزادی منایا گیا، جس میں ہندو مسلمان سب شریک ہوئے، مگر تیور اسی دن سے بدلنے لگے۔ مسلمانوں میں ہر اس دن سے ہراس پیدا ہو چلا تھا، لیکن سب اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے۔ ابتدا میں دلی کی حکومت نے بڑی سختی سے انتظام کیا، باہر والوں نے چین سے نہ بیٹھنے کی قسم کھائی تھی۔ ذرا سکون ہوا کہ پھر چھوٹا سا ہنگامہ شروع کر دیا، اور کچھ نہیں تو رات کو نعرے لگائے جاتے اور گھنٹے بجائے جاتے۔ مسلمان سمجھتے کہ حملے کی تیاری ہے، جو جواب میں وہ بھی نعرے لگاتے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نعرے لگانا خلاف قانون قرار پایا اور اعلان کیا گیا کہ نعرے لگانے والوں کو گولی مار دی جائے گی۔ 20 گھنٹوں کے کرفیو تو لگا ہی کرتے تھے، اب 86 گھنٹوں کے لگنے لگے۔ 2-4 گھنٹوں کے لیے کبھی کرفیو کھل گیا تو کھل گیا، ورنہ اپنے گھروں اور محلوں میں قید رہو۔ شہر پر عجیب بے رونقی چھا گئی اور جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگنے لگے۔ جب کرفیو کھلتا، لوگ بدحواس ہو کر ضروری سامان خریدنے بازاروں میں نکل پڑتے۔ دکانوں پر وہ ریل پیل ہوتی کہ کمزور آدمی تو دکاندار تک بھی نہ پہنچ سکتا۔ سودا کم اور خریدار زیادہ، حد یہ کہ راشن ملنا بھی دشوار ہو گیا۔ 2 ہفتے میں بمشکل 1 ہفتے کا راشن ملا، وہ بھی اس خوبی کا کہ آٹا نہیں ہے۔ گیہوں لے لو، آٹا پیسنے کی چکیاں اول تو کھلی نہیں، اور جو کبھی کھول گئی تو اس پر 1 میل لمبی قطار کھڑی ہو جاتی۔ کرفیو 4 گھنٹے کے لیے کھلتا، اور کرفیو کے بعد کوئی باہر ٹھہرے تو اسے گولی مار دینے کا حکم۔ لاچار لوگوں نے خود چکیاں پیسیں، مگر اتنی چکیاں بھی کہاں سے آتی؟ لوگوں نے سل بٹے پر گیہوں پیسا، اور جب اس طرح بھی کام نکلتے نہ دیکھا تو ابال کر کھانے لگے۔ 5 ستمبر جمعہ کے دن میں اپنے دفتر پہنچا، ضروری خطوں کے جواب لکھ کر محلے کی مسجد میں 2 بجے نماز پڑھنے گیا۔ واپس آیا اور اپنے کمرے تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا، اور اس کے بعد ایک دل دہلا دینے والا شور برپا ہوا۔ غور سے سننے پر معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ کسی نے فتح پوری کی مسجد میں بم پھینکا تھا۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ہماری گلی میں سے نکلے تو پتہ چلا کہ مسجد کی کیاری میں بم پھٹا ہے۔ ایک آدمی تو اسی وقت مر گیا، 8-10 زخمی ہو گئے۔ نمازی جب نعرے لگا کر مسجد سے نکلے تو پولیس نے بندوقیں چھتیا کر انہیں منتشر کر دیا۔ سارے بازار چشمے زدن میں بند ہو گئے، اور خوف کے مارے سب اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ہمارے گھر سب سے زیادہ خطرے میں تھے کہ سارا محلہ ہندوؤں کا تھا، مگر محلے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ تاہم جتنے آس پاس کے مسلمان تھے، سب ماں بال بچوں کے ہمارے زنانہ گھر میں آ گئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں اندر گیا تو عجیب منظر دیکھا۔ 50-60 عورتیں دالانوں میں بھری ہوئی تھیں۔
सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। सैन और छोटे दालान में मर्द खड़े थे। किसी के हाथ में छुरी थी, किसी के हाथ में लकड़ी। एक साहब जो दरवाजे के करीब थे, उनके हाथ में 2 नाली खाली बंदूक। कर्ज हर शख्स तैयार खड़ा था कि अब हमला हुआ। मैं कोठे पर गया और चारों तरफ हिंदुओं के मकानों पर नजर डाली। सब अपने अपने घरों में खामोश खड़े थे और तेवर हमला करने के नहीं थे। ये देखकर मैं फिर अपने दफ्तर आ गया। मेरा क़याम इन दिनों जामिया मस्जिद के इलाके में था। मेरे 2 मुंशी भी इधर ही रहते थे। मैंने उनसे कहा कि काम बंद करो और घर चलो, वरना कर्फ्यू लग जाएगा। हम सब गली में निकले तो हिंदू खड़े थे, मगर मुसलमानों की आमदोरफ्त हो रही थी। हम भी निकलते चले गए। सब दुकानें बंद पड़ी थीं। हम दर्द के दवाखाने पर अशरफ सबू ही खड़े थे। उन्हें घर पहुंचने की ताकीद करके हम आगे बढ़े ही थे कि सामने एक रक्षा में एक मोटा सा हिंदू आता दिखाई दिया। दोबारा जो उधर नजर उठी तो देखा कि रक्षे वाला खाली रक्षा मोड़ रहा है और वो मोटा हिंदू निहायत तेजी से भागा जा रहा है। उसके पीछे छरेरे बदन के 2 लड़के लगे हुए हैं। एक लड़के के हाथ में उसकी फटी हुई कमीज का पिछला हिस्सा था और दूसरा उससे करीब होकर अलग हो चुका था। जब वो मोटा हिंदू हमारे सामने से गुजरा तो उसकी धोती ऊपर से सुर्ख हो चुकी थी और वो अपने भारी बदन के बावजूद इतना तेज दौड़ रहा था कि छरेरे बदन वाले लड़के उसे दोबारा न पा सके। हम घबराहट में पंडित के कोचे में घुस गए। सोचा कि गली शाह तारा में से होकर काजी हौज पर निकल जाएंगे। ऊपर से किसी ने मेरा नाम लेकर 2-3 आवाजें दी। देखा कि कहकशां का दफ्तर है और काजिम साहब आवाजें दे रहे हैं, यहाँ आ जाइए। 20 मिनट इनके पास बैठकर मशवरा किया कि किधर से जाना चाहिए। चुनांचे उनके बताए हुए रास्ते से हौज काजी पहुंचे। कुछ और मुसलमान भी चावड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। लपक कर उनके साथ हो लिए। वहां चंद हिंदू गुंडे खड़े थे। उस इलाके में अक्सर खंजरजनी के वाकयात हुआ करते थे। एक दफा तो हम झिझके, लेकिन रुकने का मौका नहीं था और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए बढ़ते चले गए। उन्होंने बड़ी बड़ी नजरों से हमें देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। मुजतबाई से मुसलमानों की आबादी शुरू हो गई और हमने इत्मीनान का सांस लिया। बस उस दिन से दोबारा दफ्तर जाना नसीब नहीं हुआ। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने शुरू हो गए थे और घर से बाहर निकलने की नौबत ना आई। हमारा मोहल्ला मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी के क्लब में था। हमने मुनज़्ज़म होकर मुख्तलिफ दिफाई जमातें तैयार कर लीं। पैसे वालों ने पैसे से मदद की और 2 ही दिन में सबके पास कुछ न कुछ हथियार जमा हो गए। भद्दे और भौंडे से ही, लेकिन दस्त बदस्त लड़ाई में खासे कारआमद और मौलिक साबित हो सकते थे। महल्ले में 4-5 बंदूकें भी थीं। उनकी वजह से बड़ी तकवीयत रही। महल्ले में दाखिल होने के सिर्फ 2 रास्ते थे, जिन पर हमने चंदा करके लोहे के दरवाजे चढ़वा दिए थे और उन पर बंदूक वालों को मामूर कर दिया था। 6 सितंबर को खबर आई कि सिखों और हिंदुओं ने करोल बाग में मुसलमानों के घर लूट लिए और बाज़ घरों को आग लगा दी गई। कई दिन पहले से मुसलमानों के घरों पर निशान लगाए जा रहे थे। ये हमले की इलामत थी, लेकिन बेशतर मुसलमान हिंदू पड़ोसियों के दम दलासे में जमे रहे और अक्सर कांग्रेसी मुसलमान थे जो खुद भी बैठे रहे और दूसरों को भी रोके रहे। चुनांचे जब हमला हुआ तो सब बर्बाद हुए। जामिया तैयबा की लाइब्रेरी और स्कूल की इमारत सब जल गई। मकतबा बुरहान और मकतबा जामे की लाखों किताबें राख का ढेर बन गईं। एक स्कूल में मैट्रिक का इम्तिहान हो रहा था, जिसमें 50 मुसलमान लड़के भी शरीक थे। इम्तिहान शुरू होने से पहले सुपरवाइजर ने सबकी हाजिरी लेकर मुसलमान लड़कों को अलहदा कमरे में बिठा दिया और जब उन्होंने पर्चा शुरू कर दिया तो इन बच्चों पर सिख तलवारें लेकर टूट पड़े और सिर्फ 2 बच्चे किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंच सके। बाकी सब शहीद कर दिए गए। करोल बाग में मेरे एक अजीज ने जंग से पहले एक कोठी 8,000 रुपए में बनवाई थी। जब दिल्ली में शरणार्थी आने लगे तो उनकी कोठी के भी खरीदार लगने लगे। उनका इरादा था कि 25,000 मिल जाएं तो उसे बेचकर पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन बोली इतनी तेजी से बढ़ी कि 40,000 पर आकर रुकी। अब उन्हें लालच ने सताया और 50,000 पर जमने लगे। जब 50,000 मिलने लगे तो 60,000 पर पहुंच गए। यूं ही बढ़ते बढ़ते ये पेशकश 75,000 तक पहुंच गई, लेकिन अब वो 80,000 मांग रहे थे। यकायक कत्लो गारत शुरू हो गई। जब उन्होंने शोर सुना तो मालूम हुआ कि घरों में आग लग चुकी है और लूटमार हो रही है।
शहर 3 मील दूर और सवारी कोई नहीं। औरतों ने रोना धोना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। अकबरी दरवाजे उनके एक दोस्त रहते थे जिनके पास मोटर थी। एक लड़के को साइकिल पर उनके पास दौड़ाया कि हमें किसी तरह बचाओ। वो इत्तेफाक से मौजूद थे, मोटर लेकर फौरन आ गए। इस अरसे में उनका एक पड़ोसी भी आ गया, जिसे वो अपना घर और मालो मता सौंप चुके थे। जब वो मोटर में सवार हुए तो शरणार्थी भी पहुंचे और घर में घुसने की कोशिश करने लगे। नया मालिक उनसे झगड़ रहा था कि ये मकान उसने खरीदा है, लेकिन शरणार्थी कह रहे थे कि तुमने खरीदा हो या न खरीदा हो, इस मकान पर हम कब्जा करेंगे। इस झगड़े में उन्हें मौका मिल गया कि मोटर में सवार होकर निकल जाएं। यूं उन्हें लालच की सजा मिली। गर्ज करूल बाग में दिन भर लूटमार होती रही। मिलिट्री के ट्रक आते और मुसलमानों को भरकर किला ले जाते। सामान उठाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। किसी के बच्चे बिछड़ गए, किसी की बीवी जाती रही, किसी का शौहर गायब, किसी का बाप नदारत। गर्ज कोई कुंबा पूरा नहीं पहुंचा। सब्जी मंडी मालदार राइयों की बस्ती थी। शरणार्थियों ने मार्च अप्रैल ही से यहाँ आना शुरू कर दिया था और उनकी जरहाना कार्रवाइयों से यहाँ के मुसलमान गाफिल न थे। दिल्ली के तमाम मुसलमान ये तय कर चुके थे कि हम खुद किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब हम पर हमला होगा तो मुकाबला करेंगे। आखिर एक दिन उन पर हमला हो ही गया। हमला आवरों के जिस्म पर खाकी वर्दियां और उनकी तहवील में बंदूकें थीं, लेकिन मंडी वालों ने उनका ऐसा गर्मा गर्म खैर मुकद्दम किया कि जल ठंडे हो गए। ताज़ा दम होकर उन्होंने ज्यादा तादाद में हमला किया, लेकिन फिर भी पसपा होना पड़ा। रवायत यह है कि हमला आवर यहाँ हजारों की तादाद में मारे गए और एक घर पर भी कब्जा न कर सके। मुसलमानों ने एक राय होकर तय कर लिया था कि सब्जी मंडी का रहने वाला अपना घर हरगिज छोड़कर नहीं जाएगा। बाज ने खाइफ होकर निकलने की कोशिश की तो उन्हें जबरदस्ती घरों में वापस भेज दिया गया। यहाँ अमीर गरीब शाना बशाना काम कर रहे थे। मुसलमानों के पास काफी असला था और वो मुतमईन थे कि हमला आवर कभी उन पर गलबा न पा सकेंगे। उन्होंने बाकायदा मोर्चे बना लिए थे और फौजी तंजीम के साथ मुकाबला करते थे। सब्जी मंडी में बाज बहुत अच्छे लोहे के कारीगर भी थे, जिन्होंने अपनी हुनरमंदी से बरेन गन्हें और अस्टेन गन्हें बना ली थी। लेकिन तीसरे दिन कज़ाए मुबर्रम की तरह हुकूमत की फौज नमदार हो गई। मंडी वाले उसे भी सिंग वाले समझे और उनसे भी मुकाबला करते रहे, लेकिन कहाँ बाकायदा सरकारी फौजें और कहाँ आम शहरी। थोड़ी ही देर में मंडी वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनके कदम उखड़ गए। एक हंगामा रस्तखेज बर्पा हो गया। भागते हुए आदमी इस तरह भुन रहे थे जैसे पहाड़ में चन्ने। सैकड़ों मर खप गए। लखपति कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए। जिन औरतों ने घर से कदम बाहर न रखा था, तरबदर खाक बसर मारी मारी फिर रही थी। माले मता इज्जत आबरू सब गई। सब्जी मंडी में मुसलमान का एक बच्चा बाकी न रहा और उनके घरों पर शरणार्थी काबिज हो गए। शाम की खबरों में बताया गया कि सब्जी मंडी की शोरश पर काबू पा लिया गया है और वहां अब अमन हो गया। सब्जी मंडी के खत्म होते ही पहाड़गंज की वारी आई। यहाँ के मुसलमान बड़े जीदार थे और अक्सर हिंदू मुस्लिम फसादात में अपनी बर्तरी साबित कर चुके थे। पहाड़गंज के मुसलमानों ने 2 दिन और 2 रात तक मुकाबला किया और हमला आवरों को इस बुरी तरह मारा कि कश्तों के पश्ते लगा दिए। हमला आवर इस तरह यलगार करके आते थे जैसे जवार भाटे में मौजें, लेकिन ये मौजें साहिल से टकरा टकरा कर पीछे हट जाती। 2 दिन तक उनकी यही कैफियत रही। तीसरे दिन जब फिर मुकाबला हुआ तो मालूम हुआ कि अब के हुकूमत की फौज मिलिट्री जंग के जदीद तरीन हथियारों से लेस मार करती चली आ रही है। थोड़ी ही देर में पहाड़गंज में खून की नदियां बहने लगीं और मुसलमान एक घर से दूसरे घर में दीवारें तोड़ तोड़ कर भागने लगे, लेकिन फौजी शिकारी कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे रहे और इन बेकसों को मारते रहे। बाहर गली कूचों और बाजारों में अगर निकलते तो गोलियों की बौछार होती। छतों पर चढ़ते तो गोली मार दी जाती। गर्ज गोलियां घर के अंदर और घर के बाहर यकसां तौर पर औलों की तरह बरस रही थीं। चारों तरफ मौत ही मौत थी। उससे जो बचकर निकल गया गोया मौजज़ा ही हो गया। फौज के साथ लुटेरे भी बंदूकें और तलवारें लिए घरों में घुस रहे थे। माल के साथ आबरू भी लुट रही थी। आबरू बचाने की खातिर मुसलमान अपना रुपया और जेवर फेंक फेंक कर भाग रहे थे।
जिस किसी के हाथ में गठरी या पोटली देखी उसे गोली मार दी गई। औरतों का जेवर इस तरह छीना कि अगर कान में बालियां देखी तो कान काट लिए। औरतों की तलाशी लेने में उन्हें नंगा करके छोड़ा गया। अगर किसी ने मज़ाहमत की तो उसे गोली मार दी। सैकड़ों औरतें लापता हो गईं। पहाड़गंज से जो मुसलमान बचकर निकले वो बिल्कुल खाली हाथ थे। कोई खानदान ऐसा नहीं था जिसके 10-5 आदमी न मारे गए हों। अक्सर पूरे खानदान ही खत्म हो गए। हमारे मोहल्ले में एक औरत पहुंची जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। ये गरीब अपने गोद के बच्चे को लेकर पहाड़गंज के मकानों में छुपती फिरती, लेकिन एक सिख ने उसे देख लिया और तलवार से वार किया। बच्चे को बचाने के लिए औरत ने वार को हाथ पर रोका, हाथ कट गया। दूसरे वार को दूसरे हाथ पर रोका, वो भी कट गया। उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसका बच्चा रोता रहा और लाशों में अपनी माँ को टटोलता फिरा, यहाँ तक कि कई घंटे बाद बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनकर किसी भले मानस ने उतर कर रुख किया और दोनों को बाहज़ार वक्त और बाहज़ार दिक्कत शहर पहुँचाया। कोई जुल्म ऐसा न था जो पहाड़गंज के मुसलमानों पर न तोड़ा गया हो, और कोई जिल्लत ऐसी न थी जो उन पर पूरी न की गई हो। फिर सुकून हो गया और पहाड़गंज के मुसलमानों के घरों और मस्जिदों में शरणार्थी बस गए। 12 हिंदू राव, सदर बाजार और पुल बंगश पर तो आए दिन आफत आती रहती थी। आज ये दुकान लूटी और कल वो। अब चांदनी चौक पर हाथ साफ होने लगा। पुलिस और मिलिट्री खड़ा तमाशा देखा करती और दिन दिहाड़े मुसलमानों की बंद दुकानें लूटी जाती। उसके ऐनी शाहिद खुद पंडित नेहरू थे, जिन्होंने एक से ज्यादा दफा ऐसे वाकयात देखे और मिलिट्री को हुक्म दिया कि लूटने वालों पर गोली चलाए। अब सिर्फ जामिया मस्जिद की दुकानें रह गई थी और उनमें तरह भी क्या था। मुसलमान अपने घरों से निकलकर सिर्फ जामिया मस्जिद तक सौदा सलफ खरीदने आ सकते थे। आगे आए और लूट कर नहीं गए। खंजर जनी शबाब पर थी और सड़क पर 20 लाशें पड़ी थीं। दाढ़ी वाला मुसलमान तो बच ही नहीं सकता था, इसलिए दाढ़ियां मुड़नी शुरू हो गई थीं और लिबास भी ऐसा हो गया था कि मुसलमान मालूम ना हो। मुसलमान की पहचान के लिए अब दुश्मनों ने एक नई तरकीब निकाली। सड़कों पर कुरान शरीफ के औराक फैला दिए और जो उनसे बचकर निकलता उसे छुरा घोंप दिया जाता था। 9 सितंबर को गांधी जी दिल्ली पहुंच गए। उनकी प्रार्थना रेडियो पर रोजाना नशर होने लगी। गांधी जी के आने के बाद शहर में कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन छुरेबाजी होती रही और मुसलमानों के मकान और दुकानें लूटती रहीं। गांधी जी हर प्रार्थना में यही कहते, मुसलमानों ने मगरबी पंजाब में बड़े जुल्म ढाए हैं, लेकिन हिंदुओं और सिखों को उसका बदला नहीं लेना चाहिए। मुसलमानों ने तुम्हारी औरतें छीन ली हैं, लेकिन तुम तो बहादुर हो, उनकी औरतें मत छीनो। मुसलमानों को चाहिए कि अपने सारे हथियार हुकूमत को दे दें और वफादार बनकर रहें। बेचारे मुसलमानों के पास अब रखा ही क्या था जो हुकूमत के हवाले करते। रही वफादारी, सो आज तक ये मालूम ना हो सका कि उन्होंने कब और कहां गद्दारी की। खैर, गांधी जी के आने से मुसलमानों को कुछ तमानियत हुई और उन्होंने मुसलमानों की कुछ पासदारी भी की। उन्होंने गैर मुआयना अरसे के लिए व्रत रखा और ऐलान किया कि उसे उस वक्त तोड़ेंगे जब अमन हो जाएगा। इस मुहिम में बहरहाल उनको कुछ न कुछ कामयाबी जरूर हुई। मुसलमानों के लिए एक कैंप ईदगाह के करीब खोला गया था, जिसमें बेघर बेदरे मुसलमान आकर पड़ गए थे। ये वो जगह थी जहां चंद साल पहले सारी दिल्ली की गंदगी डाली जाती थी। बेवक्त की बारिश ने और भी इन बेआसरा लोगों की मुसीबत में इजाफा कर डाला था और मैं भी वो धुनताल पड़ रहा था कि इलाही तौबा नाचार ये गरीब जामिया मस्जिद में आ पड़े। शहर वालों ने चंदा कर करके उन्हें देगें पकवा कर भेजी, मगर ये इतनी बड़ी तादाद में थे कि ये खाना कफायत न करता था। बड़े बड़े अच्छे आदमियों को देखा कि वो कहीं कहीं वक्त के फाके से हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना तो कैसा, जबान से कुछ कहना तक आर समझते थे। शहर वालों में से जो जिसकी तौफीक होती, इन खानुमा बर्बादों को चुपके से जामिया मस्जिद में पहुंचा आता। रफ्ता रफ्ता ये तादाद बढ़कर 25,000 तक पहुंच गई और मस्जिद में नमाज पढ़ने की गुंजाइश तक न रही। चुनांचे ऐलान किया गया कि जामिया मस्जिद खाली कर दी जाए और मुसलमान पुराना किला चले जाएं। पुराने किले में राशन भी मिलेगा। चुनांचे जामिया मस्जिद खाली हो गई और बारिश में भीगते भीगते ये मुसलमान पुराना किला पहुंच गए। मेवात से आए हुए जो लोग उर्दू मैदान में पड़े हुए थे वो भी वहां से हटा दिए गए और ये सारा टुकड़ा सुनसान हो गया।
इन लोगों की मौजूदगी में शहर वालों को बड़ी ढास थी कि जब तक ये पड़े हुए हैं हम पर कोई हमला नहीं हो सकता। ये सहारा भी जाता रहा। अब काली मस्जिद की तरफ से हमला आवर बढ़ रहे थे। तुर्कमान दरवाजे से उनके रेले अंदर आने शुरू हो गए थे। दिल्ली दरवाजे और फैज बाजार से मुसलमान मकान छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे और हिंदू और सिख खाली मकानों पर कब्जा कर रहे थे। पाए वालों और चावड़ी का रास्ता भी उनके लिए खुल गया था। मुसलमान चारों तरफ से बुरी तरह से गिर गए थे और घेरा रोज बरोज तंग होता जा रहा था। उसी जमाने में आसिफ अली, जो अमेरिका में हिंदुस्तान के सफीर थे, चंद रोज के लिए दिल्ली आए। उन्हें बाद मुसलमान कूचा चेला में भी ले आए कि जरा चलकर देखिए दिल्ली की क्या हालत हो गई है। उनके तस्वुर में भी यहाँ की अबतरी नहीं थी। वो कूचा चेला और अपने घर को देखकर रोने लगे और वफूरे गम से उनके मुंह से कोई बात न निकल सकी। 5 सितंबर को मेरे घर में 700 रुपए थे। एक हफ्ते ही में 500 रुपए खत्म हो गए। महंगाई, चंदों और जरूरतमंदों ने तड़ तोड़ दिया था और अब मजीद रकम कहीं से मिलने की उम्मीद न थी। बैंक और डाकखाना दोनों ने रुपया अदा करना रोक दिया था। समझ में न आता था कि दिल्ली से लाहौर कैसे पहुंचेंगे। बस खुदा पर भरोसा था। 6 सितंबर को एक दोस्त की बीवी बुरे हालों हांफती कांपती पहुंची। ये पहले करोल बाग लुटी, अब कुचे चेला में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मां बच्चों के पड़ी थी और राशन खरीदने तक के लिए उनके पास कुछ न था। मैंने बीवी से कहा, उन्हें जो कुछ दे सकती हो दे दो। मेरी बीवी के पास 100 रुपए बाकी थे, 50 उन्हें दे दिए। उनकी मुसीबत देखकर हम अपनी परेशानियां भूल गए थे। पुराना किला क्या खुला, दिल्ली वालों के पांव उखड़ गए। मगर किले में इस कदर तकलीफें थी कि अक्सर आदमी वहां से लौट आए कि अपने घर में ही मर जाना अच्छा। मेरी जाती राय भी यही थी और लोगों को भी मैं यही तलकीन करता रहता था। लेकिन मेरे हम जुल्फ अजीज साहब, जो मिलिट्री के दफ्तर में मुलाजिम थे और पाकिस्तान जा रहे थे, हम लोगों को भी पाकिस्तान ले जाने पर तुले हुए थे। 15 सितंबर को मैं नमाज ज़ोहर की तैयारी कर रहा था कि यक्का यक अजीज साहब निहायत परेशान हाल पहुंचे। उन्होंने आते ही कहा, जल्दी चलिए, ट्रक आ गया है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरेगा। ये सुनना था कि घर में जैसे भूचाल आ गया। हमारे सब आदमी जिसके हाथ में जो चीज आई लेकर खड़े हो गए। जो मेहमान आए हुए थे शिकवा करने लगे कि हमको छोड़े जा रहे हो। मैं अजब शेषो पंज में पड़ गया कि क्या करूं। जब सब तैयार होकर जमा हो गए तो मैंने कहा, तुम चलो, मैं भी आ जाऊंगा। इस पर मेरी बीवी और बच्चे बोले, हम भी जाकर क्या करेंगे, हम भी नहीं जाते। और वो सब धरना मारकर बैठ गए। उधर ट्रक वाला चीखता हुआ आया, चलते हो तो चलो वरना हम जा रहे हैं। मैं इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। 1 मिनट के लिए सोचा कि ये बच्चे और औरतें क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी। उनसे अलहदा होना तो पीछा छुड़ाना है और अपनी जिम्मेदारियां से रूगर्दानी। ये तो बड़ी बुज़दिली है कि मुसीबत के वक्त उनका साथ छोड़ा जाए और अजीज साहब पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए। फिर ले दे के कुल पूंजी 50 रुपए है, खर्चा कहाँ से आएगा। उधर ये ख्याल भी आता था कि मोहल्ले वाले मेरे जाने पर क्या कहेंगे कि हम तो यहीं रहने की तलकीन करते रहे और खुद चल दिए। फिर घर किस पर छोड़ा जाए, खुद मोहल्ले वाले ही लूट लेंगे। गर्ज एमको की तरह उठा और अलमारी खोलकर चंद नायाब किताबें निकाली और साथ हो गया। मोहल्ले में जिन्होंने देखा कहा, लो बाबूजी भी चले। क्यों मियाँ, आप भी जा रहे हैं? आए आप भी। और मैं सर झुकाए मुल्ज़िमों की तरह खामोश चला जा रहा था। फाटक पर 2 ट्रक खड़े थे जिनके साथ एक कैप्टन और 2 राइफल वाले थे और भी चंद सवारियां उनमें बैठी हुई थीं। हम भी सवार हो गए। फैज बाजार में हिंदू और सिख मकानों और दुकानों पर खड़े हुए गालियां दे रहे थे और हम सहम रहे थे कि कहीं छत पर से हस्बे मामूल गोलियां न बरसने लगे। मगर अल्लाह ने खैर ही रखी। पुराने किले के बाहर इस कदर हजूम था कि 1 घंटे में हमारे ट्रक किले के अंदर दाखिल हो सके। सुबह बारिश खूब हो चुकी थी और जगह जगह पानी खड़ा था। शाम का झटपटा हो गया था। हमने अपना मुख्तसर सा सामान उतारा और अजीज साहब के पीछे पीछे हो लिए। पुराना किला हशर का मैदान बना हुआ था। जब हम वहां पहुंचते हैं तो उसमें 80,000 आदमी मौजूद थे। फसीलों पर और बुर्जियों में भी आदमी भरे हुए थे। किला इतना भर गया था कि एक और कैंप मकबरे में खोल दिया गया। ये वही हुमायूं का मकबरा था जहां दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने 90 साल पहले भागकर पनाह ली थी। मकबरा भी भर चुका था और तीसरा कैंप अरब सरा में खोलने की तजवीज थी।
बारिश ने सब कुछ उलट पुलट कर रखा था। मुश्किल से 20-25 खेमे कहीं कहीं लगे हुए दिखाई देते, उनमें लोग खिंचाखच भरे हुए थे। लोगों ने बांस काटकर उन पर दरियां और चादरें डाल दी थीं, लेकिन मींह कब रुकता था। सब पीक पीक कर चौड़ा होते रहे। बाद में कई सौ खेमे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ गए थे और यूं कुछ सहूलत मुयस्सर आ गई थी। राशन पहले पाकिस्तान के जिम्मे था, जो बहुत उम्दा और अच्छी मिकदार में मिलता था। दूध के डब्बे और बिस्कट अक्सर मिकदार में आए, लेकिन मुंतजमीन के दिलों में बेईमानी समा गई थी। वो महाजरीन को राशन मुफ्त देने के बजाय बेचना शुरू कर दिया। किले में पहरा भी पाकिस्तानी फौज का था, लेकिन गांधी जी के मुआयने के बाद हिंदुस्तान के जिम्मे हो गया और पहरा भी हिंदुस्तानी फौज का रहने लगा। राशन की बदनज़मी इस कदर थी कि अगर महाजरीन के पास उनका अपना राशन ना होता तो आधे पौने आदमी तो भूखों ही मर जाते। किले में रोशनी का कोई इंतजाम न था। रात के अंधेरे में उठाई गिरे सताते सारे किले में सिर्फ एक नल था, जिसकी धार भी पतली थी और उस पर 24 घंटे 2 लंबी कतारें लगी रहती और एक मर्दों की दूसरी औरतों की 8-8 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद एक बाल्टी पानी भरने की नौबत आती। उससे ज्यादा पानी कोई नहीं ले सकता था। उस पानी पर हर वक्त सर पटोल होती रहती। औरतों में तो वो मारपीट होती कि सब खूनम खून हो जाती। किले में चप्पा भर जमीन हमें भी मिल गई। जमीन दिन भर की बारिश से तरबतर हो रही थी। उसी पर बिस्तर फैला दिए और खाना खराबों की तरह बैठ गए। सामने जो किसी बच्चे ने देखा तो बोला, ए लो चचा जान बैठे हैं। अब जो हमने गौर से उधर देखा तो मेरे छोटे भाई और उनके बच्चे भी बैठे दिखाई दिए। दौड़कर उनके पास पहुंचे। अरे मियाँ, तुम यहाँ कहाँ? उन्होंने हैरत से पूछा। तुम्हारा मोहल्ला तो महफूज था, तुम क्यों यहाँ आ गए? वो सिविल लाइंस में रहते थे। आधी कोठी में ये थे और आधे में बड़े भाई। इतने में बड़े भाई भी आ गए और उनके बीवी बच्चे भी दिखाई दिए। दिल भर आया और सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मालूम हुआ कि कल एक फौजी दस्ते ने आकर कोठी को घेर लिया और बंदूकें छता दी कि खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले वरना गोली मार दी जाएगी, और तलाशी लेनी शुरू कर दी। सारी कोठी को खोद मारा और 5 बंदूकें और कारतूस साथ ले गए। हमने कहा भी कि उनका लाइसेंस मौजूद है, मगर उन्होंने एक ना सुनी और चलते बने। उनके जाने के बाद भाई डिप्टी कमिश्नर के पास गए और शिकायत की, मगर उसने बेपरवाही से कहा, मंजर साहब, उसे गनीमत समझिए कि आपके साथ उससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान जाकर देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। लाचार मुख्तसर सा सामान लेकर दोनों भाई निकल खड़े हुए और कोठी एक हिंदू पड़ोसी के हवाले कर दी। ये पड़ोसी बहुत अजीज दोस्त था, लेकिन 1 महीने बाद मालूम हुआ कि सारी कीमती चीजें कोठी से गायब हो गईं और उसमें शरणार्थी बसा दिए गए। रात भीग रही थी, इसलिए सबसे पहले खाने का इंतजाम करना था। बीवी ने गालबन आने वाली मुसीबत का अंदाजा लगा लिया था और उन्होंने पहले ही से चंद रोज का राशन, नमक, मिर्च, घी वगैरह एक बोरी में रख लिया था। भाई के पास अंगीठी और कोयला मौजूद था। अंगीठी सुलग गई और खिचड़ी चढ़ा दी गई। भाइयों से मालूम हुआ कि उनके टिकट बन चुके हैं और कल सुबह की स्पेशल ट्रेन से वो लोग लाहौर जा रहे हैं। टिकटों में 2 आदमियों की गुंजाइश थी, इसलिए मैंने अपने 2 बच्चियों को उनके साथ कर दिया। मेरे पास गिनती के चंद रुपए रह गए थे। एहतियातन मैंने उनसे 600 रुपए ले लिए और यूं पैसों का मसला हल हुआ। अगले रोज सुबह सवेरे वो लोग लाहौर रवाना हो गए और तीसरे दिन इत्तला आ गई कि वो गाड़ी बखैरियत लाहौर पहुंच गई। मैंने सुबह उठकर किले का चक्कर लगाया कि उसकी आबादी का अंदाजा हो जाए। दूसरे सिरे पर कुछ झाड़ियां थी जिनमें रफ़े हाजत के लिए किले के 80,000 आदमी जाते थे। ये एक बड़ा इबरत का मकाम था। पेचस का मर्ज आम था और हैजा भी फैल रहा था। कदम कदम पर निजासत थी और इस दर्जा मजबूरी थी कि सत्तर और पर्दे का होश न था। दिल्ली के शरीफ घरों की वो औरतें जो 12 बरस के लड़के तक से पर्दा करती थीं और रात को किसी वक्त उन्हें गलीज झाड़ियों में जाती। उस जमाने में मर्दों की बड़ी मट्टी पलीत हुई। दिल्ली दरवाजे या तुर्कमान दरवाजे से बाहर निकलना मुसलमानों के लिए नामुमकिन हो गया था। इसलिए लोगों ने मोहल्लों और घरों में ही मुर्दे गाड़ने शुरू कर दिए थे। जब उनमें जगह न रही तो जामे मस्जिद के सामने वाले मैदान में मुर्दे दबाए जाने लगे। पुराने किले में पहले तो किले के बाहर कब्रें बनाई जाती थीं, फिर अंदर ही बनने लगीं।
शायद ही किसी मुर्दे को पूरा कफन मिला हो, वरना किसी कपड़े, चादर या दरी में लपेटा और कब्र में उतार दिया। बाज लोगों को उसकी भी तौफीक ना हुई और उनके मुर्दे बेगोरो कफन पड़े रहे। किले में शहर से सौदा ला लाकर बेचने लगे और हमारे चले आने के बाद बाकायदा दुकानें लग गई थीं। सौदा महंगा मिलता मगर मिल जाता था। बेकारी की वजह से लोगों के पास पैसा न रहा तो वो सामान बेच बेच कर गुजारा करने लगे। तांबे के बर्तन 6 आने सेर तक बिक गए। सिलाई की मशीन 20 रुपए और साइकिल 10 रुपए में बिक रही थी। सोना 20 रुपए तोला तक बिका। महाजरीन की तकलीफों से फायदा उठाने वालों की कमी नहीं थी। एक बुढ़ा सिख किले के बाहर दरवाजे पर खड़ा हो जाता और जेवर खरीदा करता था। एक औरत ने उसे अपना झूमर दिया। उसने कसवटी पर कसकर देखा, तोला और कहने लगा 4 तोले का है। फिर 20 रुपए के हिसाब से 80 रुपए निकाल कर देने लगा। औरत ने बड़ी आजिज़ी से कहा, भाई ये झूमर 100 रुपए तोला की खरीद का है, कुछ तो नर्ख बढ़ाएं। बड़ी हुज्जत के बाद उस शख्स ने 100 रुपए की पेशकश की और औरत को नाचार ये 100 रुपए लेने पड़े। मुसलमानों ने भी यही हरकत शुरू कर दी थी। किले में कोड़ियों के मूल, जेवर और चीजें खरीदते और शहर जाकर अच्छे दामों बेचते। 18 सितंबर की रात 11 बजे मालूम हुआ कि कल पहली गाड़ी से हमें लाहौर जाना है, जो सुबह 7 बजे रवाना होगी। ये सारी रात जागकर गुजारी और अला सुबह निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की सिमत हो लिए। स्टेशन के बाहर कई हजार आदमी पड़े थे। हम ट्रकों में से उतरते ही रहे और उन्होंने झटपट अपना सामान रेल में भर खुद भी फैल फैल कर बैठ गए। आध घंटे की कोशिश के बाद हम भी एक डब्बे में जबरदस्ती घुसने में कामयाब हो गए। लोग बराबर आते रहे और अपना सामान खिड़कियों में से अंदर फेंकते रहे। किसी का मगज फटा, किसी का हाथ टूटा, मगर ये सिलसिला उस वक्त तक बंद नहीं हुआ जब तक किसी डब्बे में उतनी जगह भी बाकी न रही कि कोई कहीं खड़ा ही हो जाए। हमारा डब्बा 32 मुसाफिरों के लिए था, लेकिन उसमें 125 आदमी थे। गर्मी के मारे दम घुटा जाता था। ये मालूम ही था कि रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने सराही और लोटे भर लिए थे। खाने के लिए बीवी ने घी की रोटियां पका ली थीं। 10 बजे गाड़ी चली और निजामुद्दीन से चलकर नई दिल्ली ठहरी। हम बड़ी हसरत से रास्ते की इमारतों को तकते आए। नई दिल्ली पर बेशुमार सिख खड़े थे। उन्हें देखकर मुसाफिर सहमने लगे और बाज ने डरकर खिड़कियां चढ़ा दी। 15 मिनट के बाद गाड़ी यहाँ से छूटी तो दिल्ली के स्टेशन से गुजरती हुई चली गई। स्टेशन सुनसान पड़ा था और जा बजा फौजी पहरे लगे थे। गाड़ी शाहदरा पर भी नहीं रुकी। गाजी आबाद पहुंची तो वहां भी उर्दू बोल रहे थे। यहाँ 10 मिनट दम लेकर आगे बढ़ी और खूब तेज रफ्तार से चलती रही। हमने सोचा अगर क़याम इतना ही मुख्तसर और रफ्तार इतनी ही तेज रही तो मगरिब के वक्त लाहौर पहुंच जाएंगे। रेलगाड़ी मीरठ पहुंची तो स्टेशन पर थोड़े से आदमी चलते फिरते दिखाई दिए। सौदा बेचने वाले दूसरे प्लेटफार्म पर जंगले की दूसरी तरफ थे। रेल से उतरने का किसी को हुक्म नहीं था। स्टेशन पर 2-4 मुसलमान भी नजर आए, मगर डरे डरे सहमे सहमे रेलगाड़ी के करीब आना चाहते, लेकिन पुलिस और मिलिट्री के खौफ से हिम्मत न कर पाते। हम 2-4 ने जुर्रत से काम लेकर मिलिट्री वालों से पूछा कि उतरकर कुछ सौदा खरीद लाएं, तो पहरेदार ने झड़क दिया। पानी तक लेने की इजाजत नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद अल्लाह का एक नेक बंदा मौका पाकर 5-7 दर्जन केले हमारे डब्बे में दे गया। साथ ही ये भी कह गया, रास्ते के लिए जहां भी मिले पानी भर लेना। मुजफ्फरनगर जब गाड़ी ठहरी तो देखकर ताज्जुब हुआ कि नौजवान बाल्टियां उठाए फिर रहे हैं और सबको पानी पिला रहे हैं। उनके बाद एक और टोली आई जिसने गाड़ी के तमाम मुसाफिरों को भुने हुए चने तकसीम किए। उनका लिबास कांग्रेसियों जैसा था, मगर दरअसल ये मकामी मुस्लिम लीग के कारकुन थे। बस ये आखिरी आसाइश थी जो हमें मिली। देवबंद पर भी कोई मुसलमान दिखाई न दिया। सहारनपुर अक्सर मुसलमान रेल के नज़दीक से गुजरते और कहते जाते, यहाँ 6000 मुसलमान रेलवे स्टाफ के पड़े हुए हैं। लाहौर जाकर रेलवे वालों से कहना कि उन्हें जल्द से जल्द निकालें। राजपुरा जब गाड़ी पहुंची तो शाम होने लगी। गाड़ी यहाँ ऐसी जमी कि 1 घंटा गुजर गया। प्लेटफार्म और पुल पर सिख बेचैन फिर रहे थे। एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। खुदा खुदा करके गाड़ी चली तो मुसाफिर खाने से गोली चलने की आवाज आई। पैदर पै 6 फायर हुए, मगर गाड़ी चलती रही।
अगले स्टेशन पर सिख कप्तान ने उतरकर हर डब्बे पर दरियाफ्त किया कि कोई जख्मी तो नहीं हुआ। जब हमारे डब्बे के नजदीक आया तो मालूम हुआ कि बराबर के डब्बे में एक बच्चा मर गया है और एक औरत जख्मी है। एक गोली हमारे डब्बे पर भी लगी थी, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। कप्तान सिर्फ पूछकर चला गया, मरहम पट्टी का कोई इंतजाम नहीं था। औरत का खून यूं ही बहता रहा। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। गाड़ी खूब तेज चल रही थी। अचानक जोर का झटका महसूस हुआ। पूरे डब्बे में खलबली मच गई और लोग बदहवास हो गए। गाड़ी रुक गई थी और लोगों की समझ में ना आ रहा था कि क्या हुआ। किसी ने कहा टक्कर हो गई, किसी ने कहा बम मारा गया है। बाहर से एक फौजी की आवाज आई, खिड़कियां बंद कर दो। आवाज के साथ तमाम खिड़कियां बंद कर दी गईं। बाज ने अपने ट्रंक और बिस्तर उनमें उड़ा दिए। इतने में फौजी मोटरों और जीपों की आवाजें आने लगीं। अब तो सब जान गए कि गाड़ी पर हमला होने वाला है। औरतें चीखती तो मर्द उनसे ज्यादा चीखते कि खामोश रहो वरना सब मारे जाएंगे। वो सहम कर चुप हो जाती, मगर बच्चे कैसे चुप होते, उन्हें तो गर्मी और अंधेरे ने बुखला दिया था। चुनांचे बच्चों की पिटाई होने लगी। वो जोर से रोए तो उनके गले घोंटे गए। दूर से गोलियां चलने की आवाजें लम्हा ब लम्हा नजदीकतर होती जा रही थीं। हमारे मुहाफिज दस्ते ने भी उतरकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम सब अपनी मौत के मुंतजिर थे कि अब गोली लगी और अब दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर सिख दाखिल हुए। 1 घंटा तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और शोर बढ़ता रहा। ये 1 घंटा क़यामत का दिन बन गया था। आखिर गोलियां कम होते होते खत्म हो गईं और मोटरों के चलने की आवाजें आने लगीं। फिर किसी फौजी की आवाज सुनाई दी, भाग गए हरामजादे। गाड़ी चल पड़ी। लुधियाना आया और चला गया। 4 बजे जालंधर पहुंचे। गाड़ी खड़ी हुई तो कप्तान ने ऐलान किया कि अब गाड़ी सुबह चलेगी। जो शख्स प्लेटफार्म पर उतरना चाहे उतर सकता है और पानी ले सकता है। बैठे बैठे पांव जुड़ गए थे। ऐसा मालूम होता था कि हम सब बरसों के बीमार हैं। हम में सिकत बाकी न थी। दरवाजे तो क्या खुल सकते थे कि छत तक सामान अटा हुआ था। अलबत्ता खिड़कियों में से कूद कूद कर हम सब मर्द बाहर निकले और पानी पर टूट पड़े। औरतों और बच्चों को पिलाया, मुंह हाथ धोए और जब औसान ठीक हुए तो आगे के डब्बे देखने चले गए कि उन पर क्या गुजरी है। रास्ते में सिख कप्तान मिला। ये कोई भला आदमी था। उसने बताया कि लाइन पर पत्थर डाल दिए गए थे, लेकिन इंजन ड्राइवर ने गाड़ी को उल्टने से बचा लिया। हमला आवर हजारों की तादाद में आए थे और बड़ी बाकायदगी से लूट मार करके चले गए। कप्तान का अंदाजा था कि हमला आवरों में से 500 आदमी जरूर मारे गए हैं, मगर ये मुबालगा था। हमसे 2 डब्बे आगे हमले का पूरा जोर रहा और 3 डब्बे बिल्कुल खाली हो गए थे। उनमें बेशुमार लाशें पड़ी थीं और कितने ही जख्मी मर्द, औरतें और बच्चे तड़प रहे थे। बहुत से लोग घबराहट में उतरकर भाग गए और वापस न आ सके। उन्हें भी मुर्दा ही समझना चाहिए। वो क्या बचे होंगे। जख्मियों की मरहम पट्टी बिल्कुल नहीं हो सकी। वो यूं ही तड़पते सिसकते लाहौर तक लाए गए। जालंधर पर गाड़ी 10 बजे तक खड़ी रही। उज़र यही था, लाइन साफ नहीं है। 10 बजे जालंधर से रवाना हुए और मानावाला एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और रुकी रह गई। मालूम हुआ कि इंजन 12 घंटे से ज्यादा काम कर चुका है और आगे नहीं जा सकता। अब दूसरा इंजन मंगाया है जो उसे आकर ले जाएगा। इतनी इजाजत मिल गई कि जो उतरना चाहे उतर सकता है। पानी फिर खत्म था। स्टेशन के पास एक कुआं नजर आया, लेकिन सबको अंदेशा यही था कि इसमें जहर न डाल दिया गया हो, इसलिए किसी ने उसमें से पानी लेने की हिम्मत न की। जब प्यास ने बहुत बेचैन किया तो हम सामने जौहड़ की तरफ लपके। उसमें बरसात का पानी भरा हुआ था। उसे चंद आदमियों ने सूंघा, चखा और पीने लगे। उनकी देखा देखी सारे मुसाफिरों ने वही मटियाला पानी पिया। मैंने भी एक गिलास भर के पिया। मजे में कोई फर्क न था। 4 घंटे बाद एक छोटा सा इंजन आया और गाड़ी मरियल रफ्तार से रवाना हुई। अमृतसर पर खूब गहमा गहमी थी। हजारों शरणार्थी पड़े हुए थे। उनकी गाड़ियां भर भर के जा रही थीं। हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर थोड़ी देर ठहरी, लेकिन आगे यार्ड में आकर फिर खड़ी हो गई। सामने नल खुले हुए बह रहे थे और धूप में उनकी मोटी मोटी धारें बलौर की तरह दिखाई दे रही थीं। कई बार इरादा हुआ कि हिम्मत करके पानी ले आएं, मगर 2-4 खौफनाक शक्लें भी दिखाई दे रही थीं। आखिर एक साहब से रहा न गया और उन्होंने सिख गार्ड से पूछ ही लिया, क्यों साहब, हम सामने नल से पानी ले लें? उसने तेवरी चढ़ाकर कहा, ये अमृतसर है, जानते नहीं। गाड़ी खड़ी रही, पानी बहता रहा और प्यासे सिसकते रहे।
मालूम हुआ कि ब्रेक खराब हो गए हैं, इसलिए मिस्त्री की तलाश हो रही है। 1 घंटे के बाद अमृतसर से निजात मिली। ब्यास के स्टेशन पर भी यही मामला पेश आया। नल भी बह रहे थे और कोरे कोरे मटके भी रखे थे, लेकिन इन मुसाफिरों के लिए जो मशरकी पंजाब जा रहे थे, सिख हर जगह तलवारें लिए फिर रहे थे। मगर दिन का वक्त था और पहरेदार मुस्तैद थे, इसलिए कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अटारी हिंदुस्तान का आखिरी स्टेशन था। यहाँ हिफाजती दस्ता हमें अल्लाह के सपुर्द करके रुखसत हो गया। आध घंटे बाद यहाँ से गाड़ी रवाना हुई तो मर्दों में जान पड़ गई। पाकिस्तान जिंदाबाद और कैद आजम जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। मालूम हुआ कि हम पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान का पहला स्टेशन जल्लो आ गया। यहाँ सैकड़ों आदमी रेल के इंतजार में खड़े थे। रेल के रुकते ही हर डब्बे में कई आदमी आ गए और सबको रोटियां, दाल और अचार तकसीम करने लगे। 2 दिन के भूखे लोग इन रोटियों पर इस तरह गिरे जैसे कभी रोटी देखी ही न थी। एक आदमी 10 रोटियां होके में दबाकर बैठ गया। औरतें और बच्चे जो दूसरी तरफ थे मांगते ही रह गए। वो तो कैसे खाने का इंतजाम इस कदर वाफर था कि सबको हिस्सा पहुंच गया, वरना लोगों ने तो हर्ष की इंतहा ही कर दी थी। मैंने 18 सितंबर की रात को खाना खाया था और अब 20 की रात को पूरे 48 घंटे के बाद आधी रोटी खाई। मेरा पहला रोजा 8 या 9 वर्ष की उम्र में रखवाया गया था। जब रोजा खुला तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि ना तो कुछ खाया गया और ना कुछ पिया गया। बिल्कुल वही कैफियत इस वक्त भी हुई। बड़ी मुश्किल से आधी रोटी आम के अचार से खाई और 1 गिलास पानी पिया। मुंह का मजा बदला हुआ था। नब्ज देखी तो बुखार था। जहां तक नजर काम करती आदमी ही आदमी दिखाई देते। जो रेल से उतरता यहीं रह पड़ता। तौफान के मारे दिमाग फटा जा रहा था। रेल से उतरने भी ना पाए थे कि कई आदमी पूछते हुए आए कि हमला कहाँ हुआ है और कितने आदमी मारे गए, और ये कहते हुए चले गए, ठहर जाओ अभी तुम्हारे सामने बदले ले लेते हैं। चुनांचे रात को कोई गाड़ी मशरकी पंजाब जाने वालों की बागबानपुरा पर रोक ली गई और सारा कर्ज महसूल चुका दिया गया। लाहौर में 11 बजे कर्फ्यू लग जाता था, इसलिए हमने एक दरख्त के नीचे सामान उठाकर रख दिया और बच्चों से कहा कि रात यहीं गुजारो। थके हारे तो सभी थे, यूं ही पढ़कर सब सो गए। सबसे ताज्जुब खेज बच्चों का बदला हुआ तर्ज अमल था। ये नाजो नाम में पले हुए थे और आदतें उनकी बिगड़ी हुई थीं, लेकिन शायद मुसीबत ने उन पर अपना असर किया था। किसी बच्चे ने ना तो दूध मांगा ना मिठाई, बल्कि सिरे से कुछ मांगा ही नहीं सिवाय पानी के। लाहौर में स्टेशन से खरीदकर उन्हें बिस्किट दिए, मगर उन्होंने वो भी ना खाए। चाय को पूछा तो चाय से भी इनकार कर दिया। हालांकि घर में एक वक्त में 2 प्यालियों से कम कोई नहीं पीता था। ये सो गए तो अजीज साहब के साथ सारे स्टेशन का एक चक्कर काटा और 2 जगह चाय पी, फिर हम भी आकर लेट गए। माना वाला के जोहर का पानी अब रंग लाया। वो शिद्दत की पेचस हुई कि सुबह करनी मुश्किल हो गई। इत्तेफाक से कुछ गोलियां मेरे अटैची केस में मौजूद थीं। रात पर खाता रहा। सुबह उठा तो तबीयत कदरे बेहतर थी। मेरे उठने की सब जाग गए और चलने की तैयारी करने लगे। लाहौर स्टेशन पर कुली बड़ी मुश्किल से मिले और मुंह मांगे दाम लेकर उन्होंने टांगों तक पहुंचाया। अब तांगे वालों की बारी थी कि जो जी चाहे हमसे तलब कर लें। उर्दू सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते और रेट चौगन्ने हो जाते। बहरहाल उनका मुतालबा भी पूरा किया और हम बारूद खाने मियाँ एम असलम के यहाँ पहुंचे, जिनसे कलमी व कल्बी ताल्लुकात कमोबेश 20 साल से थे। मैं जब उनके घर पहुंचा तो डेवड़ी में डॉक्टर तासीर और चंद और लोग बैठे थे। तासीर साहब पहले तो हैरानी से देखते रहे, फिर पहचान कर बोले, आप तो 10 साल ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं। उन्होंने जल्दी से अंदर असलम साहब को इतलाक कराई और तसल्ली देने लगे। इतने में असलम साहब भी आ गए। सबको घर में पहुंचाया और नाश्ता कराया। जब मैं गुस्ल से फारिग होकर बाहर निकला तो असलम साहब मेरे मुंतजिर थे। घंटों उनसे बातें होती रहीं। उन्होंने इतनी दिलजोई की कि मैं अपने गम बहुत हद तक भूल गया। मेरे लिए मकान का फौरन इंतजाम कर दिया, मगर जाने न दिया और 20 दिन अपने यहाँ मेहमान रखा। कई अजीज जो 21 सितंबर की स्पेशल से दिल्ली चले थे मारे गए। उस पूरी गाड़ी में सिर्फ 200 आदमी जिंदा बचे थे। एक दोस्त की जो इस गाड़ी से लाहौर पहुंचे थे, हालत ये थी कि सारे कपड़े खून में लथपथ थे और वो पागलों की तरह चीखते थे कि मैंने मुर्दों को पांव पर खून चाटा है।
ये लाशों के नीचे दबे रह गए थे और प्यास बुझाने के लिए खून चाटते रहे थे। उनकी खून आशामी की कैफियत सुनकर बाहर की वो पागल औरत याद आ जाती थी जो सबसे कहती फिरती कि मैंने अपने 7 बच्चों का खून पिया है। उसके 7 बच्चे उनकी आंखों के सामने ज़िबा किए गए और सबका खून उसे ज़बरदस्ती पिलाया गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस किस्म के इबरतनाक वाक़यात से महफूज रखा और हम इतने बड़े आशोक में से जिंदा सलामत निकल आए। माली नुकसान का क्या है, जिंदा रहे तो बहुत कुछ कमा लेंगे, अलबत्ता दिल्ली छूटने का दाग दिल पर हमेशा रहेगा। दिल्ली अब भी बाकी है और वहाँ मुसलमान भी बसते हैं, लेकिन वो दिल्ली अब कहाँ, वो दिल्ली तो कभी की मर गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।